Hello everyone, welcome back to the podcast. I am Vipul Chauhan And I'm Rudransh. and we are definitely nerd. And in this episode, we are going to talk about a book that is written by a well known author, most of you would know, Dr. Jordan Peterson. And the book is called 12 Rules for Life. So let us know more about the author first. Jordan B. Peterson is a Canadian media personality, clinical psychologist, author, and has been a professor at various prestigious universities such as Harvard University and University of Toronto. 12 Rules of Life, An Antidote to Chaos, is a 2018 self-help book written by him. It provides life advice through essays in abstract ethical principles, psychology, mythology, religion, and personal anecdotes. The reason which I personally like the book a lot is because he treats religion as a continuous set of accumulated wisdom over the generations by various brilliant thinkers, uh, as opposed to treating religion as a dogmatic set of principles which people follow mindlessly. So let's discuss the structure of the book. So the book is divided into 12 chapters, that is 12 rules, and every rule in the book should be interpreted. So every rule in the book should be interpreted literally, but also metaphorically and figuratively to find out the meaning behind it. So let's start with the first chapter, the first rule. Stand up straight with your shoulders back. Now, this rule can be easily figured out literally, like you have to stand up straight with your shoulders back. And there is some utility to it, some meaning to it, which we will discuss later in the chapter. But first of all, let's dissect the metaphorical meaning of the same. So scientists conducted various experiments on lobsters because their nervous systems are comparatively simpler and there are easily observable neurons. This has helped us understand the structure and functioning of the brain and behavior of more complex animals just like human beings. तो लॉबस्टर्स पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराने के बाद ह्यूमंस के नेचर और ह्यूमंस की मेंटालिटी के साथ काफ़ी सारे पैरेलल्स ड्रॉ करवाए गए थे. सो वी आर गोना सी अबाउट देम. So just like humans, even lobsters live in hierarchy. The superior one is normally decided through a fight. जो भी फाइट जीतता है उसको that lobster rises up the ladder, and जो भी फाइट हारता है वो नीचे लोअर एंड ऑफ द लैडर पे लाया करता है. विनर या लूजर की फाइट दो तरीके से एंड हो सकती है. या तो एक लॉबस्टर हार मान ले और बैकआउट कर जाए, या फिर इन केस कोई लॉबस्टर बैकआउट नहीं करना चाहता है तो वो फाइट तभी एंड होगी जब एक लॉबस्टर उनमें से मर जाएगा. मतलब द एंड ऑफ द फाइट इज वन लॉबस्टर बीइंग डेड एंड द अदर वन इज विक्टोरियस, ऑफ कोर्स. Not just lobsters, even the birds have this pecking order in which एक hierarchy maintain करी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग जो सबसे पावरफुल होता है वो हायर अपॉन द लैडर लाया करता है, और जो भी वीकर सेक्शंस होते हैं, जो भी वीकर एनिमल्स होते हैं बेसिकली, वो लोअर एंड ऑफ द लैडर पे लाया करते हैं. ये चीज मैंने इसलिए हाईलाइट करी कि लॉबस्टर्स अराउंड 400 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे, मतलब एग्जिस्टेंस में आए थे लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस. और ये जो हायरार्की है, जो पैकिंग ऑर्डर है, ये तभी से चला हुआ आ रहा है. अब कुछ लोग जैसे रशियन कम्युनिस्ट होते हैं, उनका ये मानना होता है कि सबको सेम ही चीज मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द जॉब, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टास्क ही और शी परफॉर्म्स. Right. So the basic idea of the Marxist strain, let's say, of the communist Russia or the USSR or the Soviet Union was that कि भाई ठीक है, in capitalism people who work hard achieve more. Or that is the theory at least. But according to the socialists or the communists, they believed that कि भाई the person who has more resources, who has achieved more, is a oppressor, and the only way someone can achieve more than someone else is through oppressing other people, which is a fundamentally flawed idea, as we will see how. So because just you are absolutely right, but वही मतलब बात ये है कि लॉबस्टर 400 मिलियन साल पहले थे इस धरती पर. ये चीज तभी से चली आ रही है. पैकिंग ऑर्डर या दिस डोमिनेंस हायरार्की इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्जिस्टेंस. या ऐसी कोई चीज नहीं है जो ह्यूमंस ने बनाई हो. इसको कम्युनिस्ट, इसको कैपिटलिज्म, इसको रेसिज्म, इस चीज का लेबल नहीं दिया जा सकता. एक्सक्यूज मी. क्योंकि ये तो शुरू से चला हुआ आ रहा है. अगर हम इसे वाइप आउट कर देंगे तो हम द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ को ही एक तरह से पीछे छोड़ देंगे, विच इज अ बिट इम्प्रैक्टिकल इन माय ओपिनियन.
मेरे हिसाब से भाई, जो किसी के पास अगर कुछ है तो उसने वहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ अचीव किया है। अगर मैं बिजनेस भी इनहेरिट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कुछ किया है। ये नहीं है कि किसी पॉलिसी की चेंज होने की वजह से मेरे पास आज सब कुछ है। और अगर मुझे कुछ अचीव करना है अपने जीवन में तो मेरे को अकॉर्डिंगली एफर्ट्स, अकॉर्डिंगली हार्डवर्क पुट इन करना पड़ेगा। इट इज नॉट समथिंग कि मैं बस कह दूंगा कि पॉलिसी में चेंज करो, या मेरे को सब आई डिजर्व इक्वल दैट्स आई शुड गेट इक्वल, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी नॉट द राइट थिंग। Right. It also ties into the idea that okay, so even in our current society, there are corrupt people, but some people reach a higher position in the hierarchy through those corrupt measures. But that does not mean that the whole system is corrupt, or that every person who has reached that place through that hierarchy is corrupt. 1% of the people hold most of the resources at will, as like we'll see. Now that cannot be just chalked up to ए ब्लैक एंड वाइट सिनेरियो कि भाई ठीक है, या तो जो सक्सेसफुल है वो करप्ट है एंड मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो भाई मैं करप्ट नहीं हूं तो आई एम मॉरली सुपीरियर देन देम. दिस वाज द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स, और बेसिकली द आइडिया दैट came about because of his philosophy or because of his book called the Communist Manifesto that was written in that time, which eventually led to Stalin and Lenin and those dictators. Yeah, like just like what you said, कि the top 1% of the population holds resources that are more that is worth more than that the bottom 50% of the population holds. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में. So तब तक के लिए लॉबस्टर्स पे वापस आते हैं. लॉबस्टर्स का ह्यूमंस के पैरेलली कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा था. एक और चीज जो पाई गई, दैट वाज इवन लॉबस्टर्स रिक्वायर अ सेफ होम टू लिव इन, and it has been scientifically seen by the scientists, of course, that if we pick up a few lobsters and transport them to a new location, they seem to form groups and habitats just like us. तो ये चीज दिखाता है कि ऑर्गेनिजम्स में कितनी सिमिलैरिटी हो सकती है. लूजिंग अ बैटल अफेक्ट्स अ लॉबस्टर प्रीटी मच इन द सेम वे एज वेल, जस्ट लाइक ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर हमने किसी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया या हम कोई कॉम्पिटिशन में हार गए तो हम लो ऑन कॉन्फिडेंस हो जाते हैं. हम किसी मतलब कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहते हैं. हमारा ये होता है कि यार अभी थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगेगा. या सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, हर फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये चीज एप्लीकेबल है जहाँ पे हमें कोई हमें डिजायरेबल आउटपुट नहीं मिला. सेम है लॉबस्टर के केस में भी कि द लूजिंग अ बैटल अफेक्ट्स लॉबस्टर प्रीटी मच द सेम वे. इफ अ डोमिनेंट लॉबस्टर इज डिफीटेड, इट्स ब्रेन बेसिकली डिसॉल्व्स, देन इट ग्रोज अ न्यू सबऑर्डिनेट्स ब्रेन, वन मोर appropriate to its new and lowly position. Whether a lobster is confident or cringing depends on the ratio of two chemicals that modulate communication between the lobster neurons. That is serotonin and octopamine. Winning increases the ratio of the former to the latter. दो केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन और ऑक्टोपामिन. ये कैटेगराइज करते हैं कि किसी भी लॉबस्टर में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है. कोई जीतता है तो सेरोटोनिन का जो उसमें मात्रा है, सेरोटोनिन का जो अमाउंट है, केमिकल का अमाउंट है, वो उसमें ज्यादा आ जाता है. एंड दैट लॉबस्टर इज कैरेक्टराइज्ड एज मोर कॉन्फिडेंट, मच मोर काम, मच मोर स्टेबल, मच मोर, मतलब ही इज मोर लाइकली टू विन फर्दर बैटल्स बिकॉज ही इज इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड. और ये चीज देखी गई है ह्यूमंस के अंदर भी कि जो डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जब वो थेरेपी वगैरह के लिए जाते हैं, उन पे वेरियस टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं कि किस रीजन से कौन से केमिकल का सिक्रेशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है. तो ये पाया गया है कि जो डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें सेरोटोनिन का अमाउंट कम रहता है. और बिकॉज सेरोटोनिन इन ह्यूमंस एज वेल प्लेज द सेम रोल ऑफ ब्रिंगिंग इन कॉन्फिडेंस, ऑफ इनकलकेटिंग दैट पॉजिटिविटी इन द एटीट्यूड. Right, and this can also be this process of basically analyzing the animal kingdom and relating the processes that goes on in other animals' brains and bodies, and relating them and drawing analogies which gives us an insight into our own bodies and brains is called anthropology. Basically, it was developed during the 1950s, and it is a very, very complicated and sophisticated branch of science which tells us a lot about yourself, about ourselves, basically. So yeah, exactly. It has been seen that high amount of serotonin are characterized, like the lobsters with high amount of serotonin are characterized with more confidence, more jolly nature, and it has also seen that if a lobster has just lost a battle and that lobster is exposed to serotonin, उसको serotonin के doses दिए जाएं अगर, then it will stretch itself out, advance even more of former victors and fight longer and harder. तो अब मतलब भले ही lobster अगर हार भी जाए
पर उसमें सेरोटोनिन को हम डोज दे दें, उसको सेरोटोनिन पुश कर दें अगर उसके अंदर, तो वही सेम लॉबस्टर फाइट हार्डर करेगा, ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए फाइट करेगा, और अगेन उसके विनिंग परसेंटेज काफी हद तक इंक्रीज भी हो जाएंगे। तो ये तो था लॉबस्टर्स के ऊपर जो स्टडी करी गई, एंड इट्स पैरेलल विद द ह्यूमन साइकोलॉजी अबाउट द डोमिनेंस हायरार्कीज एंड ऑल। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड बिट अर्लियर कि द top 1% holds much more resources than the bottom 50% of the population। इसको एक टर्म भी दिया गया है, इसको प्राइसेस लॉ के नाम से बुलाया गया है, मतलब it is named after the scientist who actually gave this law, and it is sometimes also known as the Matthews principle। All this discussion on similarities between lobsters, as I just said, proves that dominance hierarchies has been a part of life for a very long time, and it cannot be labeled as communist or racist or anything of that sort। जो अगेन जो तूने बोला था कि ऐसा लगता है कि जो टॉप पे पहुंचे वो सारे करप्ट ही हैं, और ये मेंटालिटी है लाइक अभी 2 दिन पहले हमारी क्लास हुई थी, इफ यू रिमेंबर, इसमें हमारी टीचर ने भी सेम ही चीज बोली थी कि लोग करप्शन से ऊपर पहुंच जाते हैं, और फिर उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं कि जो नीचे वाली पॉपुलेशन होती है वो गरीब होती है, उनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं होती हैं। ये चीज गलत है, सारे लोग करप्शन के थ्रू आगे नहीं जाते हैं। ये से लोग क्या कहते हैं, इसे एक वे आउट बना लेते हैं अपना मेहनत ना करने का। लोगों को लगता है कि भाई हम करप्शन नहीं करते, अगेन हम मॉरली सुपीरियर है, हमारी वैल्यूज ज्यादा अच्छी हैं, और हम करप्शन नहीं करते, इस वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। जबकि असली रीजन यही है ना ऊपर ना जाने का, कि मेहनत में कमी है, हार्डवर्क में कमी है, अप्रोच में कमी है। स्मार्ट वर्क हार्डवर्क दोनों चाहिए होता है, बट अगर तुम उसे ढंग से ना करो तो कितना भी हार्डवर्क डालते रहो कुछ नहीं होने वाला। और लोग जनरली लेजी हो जाते हैं, इस वजह से यही रीजन है कि लोग ऊपर तक नहीं जा पाते। ये चीज लोग मतलब ये चीज कई बार लोग समझ नहीं पाते और इसे एज अ वे आउट यूज कर लेते हैं, rather than doing hard work they simply give arguments on this, and using which they defend themselves as not being as successful as those who lie above the majority of population। Right, and I think we can see why. We can think about why. It's just a hypothesis. Treating a complex theory or a complex system as black and white is quite easy. Having answers which does not require much nuance, and not thinking about complex systems in terms of the multiple variables that form that system is very easy, first of all. And second, not doing that, analyzing a system for what it is, that ठीक है भाई corruption हो सकता है, लेकिन corruption सिर्फ एक वो फैक्टर नहीं है सक्सेस का। There are these many factors कि भाई कहाँ पैदा हुए हो, कितनी एजुकेशन मिली है, ये सब। These multivariate analysis on complex systems we can teach this only through education to people and the thing is जो लोग बहुत successful नहीं होते, sometimes that is associated to lesser privilege of acquiring education basically। तो भाई ये देखा जा सकता है कि भाई if someone is less educated, he or she does not possess the ability to have some nuance in analysis of these complex systems, so that person paints it as black and white कि भाई corruption है या तो या मैं incapable, और third option नहीं है। So that might be one of the reason that these constructs of socialism or communism are so, let's say, attractive to such people। Yeah, exactly. And one more thing is कि ठीक है, करप्शन एक पॉइंट के बाद मान सकते हैं कि चलो चाहिए, मतलब मान सकते हैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो में, बट ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें एक स्टेप ऊपर जाने के लिए भी करप्शन नहीं चाहिए। तुम शुरू तो कर सकते हो, जहां तक करप्शन नहीं चाहिए वहां तक तो जा ही सकते हो ना। पर लोग वही है, इसको बहाना मार के बाहर निकल जाते हैं इस चीज से कि हमें काम ना करना पड़े। और ये चीज है यार कि इतनी पॉलिसीज आ गई, अगर मेरे को सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, मेरे को बेसिक रहना, बेसिक खाना, बेसिक पीना, ये सारी चीजें, हेल्थ फैसिलिटीज अगर मेरे को लो कॉस्ट में मिल रही है तो मैं मेहनत भी क्यों करना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी भी बैक ऑफ द माइंड लोगों के रहती ही है। सो मूविंग ऑन, द बुक देन टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ नेचर सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट इट डज हैव अ डीप मीनिंग। जब भी हम बात करते हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई चीज बॉदर कर रही है तो देन यू गो टू अ पार्क, नेचर के पास जाओ, नेचर विल हील यू, है ना। कहते हैं कि भाई पार्क में घूमोगे ऑक्सीजन मिलेगी। सो वी टॉक अबाउट ऑल द पॉजिटिव्स ऑफ द नेचर, बट वी नेवर टॉक अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ द नेचर एज वेल, कि भाई वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, है ना। केदारनाथ में जो हुआ था, बाढ़ फ्लड्स आए थे, वो हो सकते हैं, या अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। दोज आर ऑल नेचुरल फिनोमेनन एज वेल। ऑर्डर एंड केओस आर टू मेजर एलिमेंट्स ऑफ द नेचर एज वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर। बट जहाँ मतलब बात वही है कि बैलेंस हर जगह ही है। वी डोंट टॉक अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर एज वेल। नेचर हमेशा ही हील नहीं करता,
So again, nature of the nature is quite unknown. Nothing can be declared in nature as static or dynamic. Like for example, even the sun has its own cycles of instability. Likewise, there is nothing so mutable that it cannot be fixed. Example are problems. भाई अगर हमारे जीवन में आज कोई प्रॉब्लम है, that does not mean कि वो प्रॉब्लम कल भी पर्टेन रहेगी. If we take certain steps in the right direction, then वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी. कोई चीज परमानेंट नहीं रहती है unless you want it to be, है ना. मतलब कोई कुछ चीजें तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल के बाहर होती हैं, बट कुछ चीजों को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं. So this is the nature of the nature, that nothing can be labeled as static, nothing can be labeled as dynamic, nothing is fixed, nothing is continuously moving, nothing is all positive and nothing is all negative. Everything has its own positives as well as the negatives. ठीक है, moving on again. अब यहाँ पे मैं वापस आना चाहूंगा ऑन द पैरेलल्स दैट वर ड्रॉन बिटवीन लॉबस्टर्स एंड ह्यूमंस. अभी हमने लॉबस्टर्स की मेजरली बात कर ली, अब थोड़ी ह्यूमंस की बात करेंगे और समझेंगे कि जो लॉ है स्टैंड बैक स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक, वो कहाँ से पिक्चर में आता है. So there is an inbuilt calculator present in our brains that keeps reminding us of our social position in this world, whether it is low or high. जब भी हम बाहर जाते हैं, हम एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके जाते हैं. कुछ चीजें हमारे अंदर होती हैं, कुछ सोशली लेट्स से कुछ चीजें होती है जिन्होंने हमें सोशली डिस्टर्ब करके रखा हुआ होता है. कुछ चीज होते हैं जिनके हम प्राउड होते हैं, जिनको हम अपने छाती पे लेके घूमते हैं कि भाई कोई मुझसे पूछेगा मेरे बारे में कि तुम्हारे बारे में पॉजिटिव्स क्या क्या, तो मैं ये बताऊंगा. मतलब सम थिंग्स दैट वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स. So depending on them, depending on the weightage of those things, our brain decides where do we lie. Example अगर मैं लेने की कोशिश करूं, तो अगर हम एक क्लास में हैं तो हम अपनी पोजीशन एवेल्युएट करते हैं कि भाई ये बंदा मेरे से होशियार है, इसके ज्यादा नंबर आते हैं, यार इससे तो मैं होशियार हूँ, इसके तो मेरे मतलब इससे तो मैं ज्यादा स्कोर कर लेता हूँ. सो इन दैट वे अगर हम ब्रॉडर स्केल पे भी देखें तो आवर ब्रेन हैज दिस कैलकुलेटर वेयर इट कैलकुलेट्स आवर पोजीशन इन दिस सोशल वर्ल्ड. And one might think that what is the difference between those who are at high positions or those who are at lower positions, and why is it so difficult for those who lie towards the lower side of the ladder to get back up? Well, one reason is, as stated earlier, is the concept of serotonin. If you are considered lowly, your serotonin is restricted and your brain makes you much more physically as well as psychologically reactive to any circumstances. That person needs that reactivity. मतलब अगर हम low on confidence हैं, जैसे अगर हमारे पास कम पैसे हैं, हम सड़क पे जा रहे हैं, तो हम ज्यादा कॉन्शियस होंगे ऑफ आवर सराउंडिंग्स. अगर हमारे पीछे कोई लगेगा तो सबसे पहला थॉट आएगा कि यार मेरे बच्चे कुछ पैसे ना चुरा ले. तो हमारा ब्रेन एक्स्ट्रा रिएक्टिव हो जाता है इन दो सिचुएशन जहां पे हम अपने आप को लोली कंसिडर करते हैं इन द सोसाइटी. और वो रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं हमें चाहिए भी होती है, बट इन इंडिविजुअल्स में जो डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो अपने आप को ऑन द लोअर एंड ऑफ दिस लैडर मानते हैं, उनमें ये जो रिएक्टिविटी है वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेती है कि जो एनर्जी एक इंसान अपने अपलिफ्टमेंट में लगा सकता था, वो एनर्जी वो नहीं लगा पाता, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं. इट बर्न्स आउट ऑल द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दैट इंडिविजुअल. Right? So again, the negative side is that it consumes up a lot of energy of that human being. This reactivity is what we call as stress. Whereas the opposite happens in someone who lies on the upper end of the ladder as well. भाई अगर कोई बंदा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो हर पेटी लिटिल चीज के ऊपर इतना बॉदर नहीं करेगा. अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो उसे पता है कि यार ये नहीं तो नेक्स्ट बेस्ट मेरे को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज मच मोर काम, मच मोर कॉन्फिडेंस, मच मोर ऑफ अ जॉली नेचर, and he's more relaxed and confident as well. Right, and this is also related to a principle called the growth principle or the growth mindset. एक experiment conduct हुआ था in Stanford University, where scientists took a bunch of kids, low graders basically in grade 1 and 2, and they first of all analyzed what is the difference between those who scored high and scored low on the lower side. The difference, as they hypothesized, was basically on their mindset. One of them didn't even try. They just thought that they are not capable enough for it. The other one, some of them thought that they were not capable enough, but they tried nevertheless. And some of them thought they were way more than capable, and they excelled. They were the superstars of the class. And then the teachers and parents were instructed to inculcate a growth mindset in those who were not achieving as much. And they were told to encourage their kids and tell them that they are capable and give them small targets and encourage them in that way. What we found out eventually that this growth mindset can be developed, and those kids
even though they were not scoring well in the beginning, started reaching the same levels of those who were already scoring well. So this shows how that mindset can be willfully changed. Yeah, in fact, this is something that I have personally experienced as well. There was a time when I was very underconfident. I used to exist as a very underconfident individual. मेरे में कॉन्फिडेंस काफ़ी कम था, एंड छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ को बना देती हैं या डिक्लाइन को बना देती हैं. सो व्हेन आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट, मेरे को ये था कि अगर कोई छोटा सा भी पुश मिल जाए, देन आई ट्राई एंड बिल्ड अप ऑन दैट, एंड दैट्स व्हाट नॉर्मली हैपेंस. तो फिर वही था कि एक छोटा सा पुश मिला, आई बिल्ट अप ऑन दैट, फिर एक छोटा सा और पुश मिला, देन आई बिल्ट अप ऑन दैट अगेन, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया. तो इंडिविजुअल को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर मेरे को पुश मिल रहा है तो उस पर बिल्डअप करे, उसको वहीं नहीं छोड़. अगर उसको वहीं छोड़ देगा तो फिर वहीं का वहीं रह जाएगा. लेवल में इंक्रीज तभी होगा. मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं जिनको एक लार्ज पुश मिल जाता है, पर नॉर्मल केसेस में 99% ऑफ द केसेस में ग्रोथ बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअली होती है. डिक्लाइन तेज हो सकता है एक बार को, क्योंकि अगर तुम एक बार गिरे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा पूरा, फिर तुम उस चीज से रिकवर नहीं कर पाओगे. और क्योंकि इंसान का माइंड नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव थिंग्स, इसलिए डिक्लाइन हमें ज़्यादा तेज़ भी लगती है और ग्रोथ हमें इतनी तेज़ नहीं लगती. बट अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देना शुरू करें तो वो ग्रोथ भी स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट ग्रोथ हैपन्स. सो कमिंग बैक अगेन, ये जो पॉजिटिव्स मतलब हायर एंड और लोअर एंड ऑफ द लैडर की बात करी है, दिस माइट इवन मैल फंक्शन, एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस मैल फंक्शनिंग, द इंडिविजुअल दैट इज ऑन द हायर एंड ऑफ द लैडर needs to maintain a fixed timetable, a strict timetable. Well, not that strict, but the basic things like getting up on time, having proper meals, this should be fixed. And this is even something that Jordan Peterson has mentioned in this book. He has seen in a lot of individuals. Many patients that came to him as a result of depression, Jordan Peterson first asked them to have a proper sleeping time. और ये चीज़ तो मैंने अगेन अपने साथ भी, एंड अगेन आई एम श्योर दैट यू हैव आल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग. अभी जैसे हम कॉलेज में हैं तो हमारा स्लीप शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा हैफासाड है. हम किसी भी टाइम सो जाते हैं, किसी भी टाइम उठ जाते हैं, कभी कभी उठने में 10, 11, 12 भी बज जाते हैं. और ये चीज़ हमारे साथ नहीं, ये चीज़ काफ़ी सारे कॉलेज वालों के साथ होती ही है. जो हम कंप्लेन करते हैं इस चीज़ की कि भाई स्कूल टाइम में हम इतने अच्छे हुआ करते थे, स्कूल टाइम में सब कुछ फिक्स था, अभी हम में क्या हो गया, अभी हम में ऐसा क्या चेंज आ गया कि हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो स्कूल टाइम पे कर पाते थे. सबसे पहली चीज़ ये है, उस टाइम हम घर वालों के अंडर रहते थे, अंडर सुपरविजन ऑफ घर वालों के अंदर रहते थे, तो सारी टाइम टेबल फिक्स था हमारे खाने का, सोने का, टीवी देखने का, ये सारी चीज़ें फिक्स थी. तो हमें पता था कि पढ़ाई का टाइम है तो इसमें पढ़ाई होगी, इसमें पढ़ाई करनी है. ये टीवी का टाइम है तो इसमें टीवी देखेंगे. कॉलेज में आके जनरली कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में आ जाता है, और फिर हम उन चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज नहीं करते कि पढ़ाई के टाइम में फ़ोन चलाने लग जाते हैं, खाना खाते फ़ोन चलाने लग जाते हैं. मतलब इस वजह से सारा टाइम टेबल ही डिस्टर्ब हो जाता है. तो जब मेंटली ही हम सॉर्टेड नहीं है तो फिर हम रियल लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं वो सॉर्टेड कैसे हो सकता है. तो ये एक रीज़न है कि हमें अपने आप को मेंटेन करके चलना चाहिए. अगर हमारी स्लीप साइकिल अगर फिक्स्ड है, हमारी ईटिंग हैबिट्स अगर फिक्स्ड है, तो फिर इट वुड बी वेरी इजियर फॉर अस टू राइज अप दैट लैडर. राइट, तो निपटा दे तब तक. प्ले. तो ये जो स्लीप साइकिल है और ये सब जो डिसरप्शंस होते हैं, दैट इज बिकॉज एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड पीपल आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड. इस वजह से उनकी ईटिंग हैबिट सुधारने की भी जरूरत है, बिकॉज देयर बॉडीज आर प्राइम टू हाइपर सीक्रेट इंसुलिन, and if they engage in any complex or demanding activity, and they do so after fasting all night without having a proper and healthy breakfast, the excess insulin in the bloodstream will mop up all their blood sugar. Then they become hypoglycemic and psychophysiologically unstable all day. Their systems cannot be reset after more sleep. Cannot be reset until after more sleep. मतलब जब तक वो दोबारा नहीं सो जाएंगे तब तक सिस्टम वापस से रिसेट ही नहीं हो पाएगा. एक चीज़ और है कि जैसे माइक के हमने एग्जांपल देखा, अगर हमारे दोनों के माइक्स ऑन है, मैंने कुछ चीज़ बोली, वो तुम्हारे माइक ने कैच करी, फिर वहाँ से स्पीकर से वापस से मेरे माइक में कैच हुई, तो एम्पलीफाई होकर बहुत ही इरिटेटिंग सा साउंड क्रिएट हो जाता है. तो इसका पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है विद डिप्रेशन. मतलब सिर्फ एक एग्जांपल है, कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, बस जस्ट टू विजुअलाइज द थिंग कि अगर हम अपने डिप्रेशन पे एक्ट ऑन नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें हमें बॉदर कर रही है उस पर एक्ट ऑन नहीं करेंगे टू रेक्टिफाई देम, तो वो चीज़ें एम्पलीफाई होती रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगेन ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है कि अगर मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ तो मेरा और बाहर जाने का मन नहीं करेगा.
मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं पूरा दिन कमरे में पड़ा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, तो एकदम से बाहर जाना मेरे लिए अजीब सा हो जाएगा। मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ अगर काफी टाइम तक, तो दोबारा मेरे लिए बाकी ज्यादा सारे लोगों से बात करना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ये भी आजकल काफी ज्यादा लोग कहते हैं ना कि ज्यादा सबसे ज्यादा पीस मिलता है जब हम अकेले बैठे रहते हैं। इसका रीजन ये है कि लोग सोशलाइज करना भूल चुके हैं, ढंग से सोशलाइज करना। ओवर सोशलाइजिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, बट लोग तमीज से सोशलाइज करना ही भूल चुके हैं। और ये चीज मेरे साथ भी हुई है कि मैं अगर बात नहीं कर रहा किसी से तो मैं पूरा दिन कमरे में पड़ा रहूंगा। अगर मैं कुछ कर भी नहीं रहा, सिर्फ कमरे में पड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई भी नहीं कर रहा, कुछ काम भी नहीं कर रहा, तब भी मेरा बाहर निकलने का, दूसरे लोगों से बात करने का, सोशलाइज करने का मन नहीं करेगा। सो दिस इफेक्ट एम्पलीफाइज ओवर टाइम इफ वी डू नॉट एक्ट अपॉन इट, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू एक्ट अपॉन दिस। अगर एक और एग्जांपल इसमें अगर लें, सो वी कैन कंसिडर एन एल्कोहलिक। जो अल्कोहल कंजम्पशन एक इंसान ने शुरू किया बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल कंडीशंस। लेट्स से अगर किसी, ये फाइनेंशियल या एनी कंडीशंस, अगर किसी इंसान के जीवन में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल्स। रीजन अल्कोहल ड्रिंक करने का लोगों का ये रहता है कि वो उन प्रॉब्लम्स को कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए भूल जाएं, क्योंकि अल्कोहल से नशा आता है। नशे में इंसान अपनी प्रॉब्लम से फोकस नहीं करता। ही इज इन दैट जोन वेयर ही फील्स वेरी रिलैक्स बिकॉज ऑफ द सिक्रीशंस। तो एक टाइम के बाद तो वही हैंगओवर उतरना भी शुरू होता है ना, जब इंसान पीना छोड़ देता है कि आज का मेरा हो गया। तो जब वो पीना छोड़ देता है तो उसे वापस से अपनी सारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स याद आ जाती हैं कि यार ये वापस याद आ रहा है। एंड टू अवॉइड दैट वो और ड्रिंक करना शुरू करता है। फिर से हैंगओवर किसी पॉइंट पे जाके उतरना शुरू होगा, फिर वो और ड्रिंक करता है, एंड दिस गोज ऑन अंटिल ऑल हिज रिसोर्सेज हैव बीन एग्जॉस्टेड। क्योंकि एक इंसान को इसका वे आउट मिल गया ना कि हैंगओवर उतर रहा है, इससे बचने का क्या तरीका है, और दारू पियो। तो ये चीज भी होती है, मतलब ये एम्पलीफाई होता जाता है। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल ऑफ द एम्पलीफिकेशन दैट अकर्स इफ यू डू नॉट एक्ट ऑन इट, एंड इफ यू लेट थिंग्स गो द वे दे आर गोइंग, लाइक इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ कोर्स. So this same destructive loop happens with people's life. Much of the time when it happens, we label it as mental illness, even though it's not only or even at all occurring inside people's psyches. Addiction to alcohol or another mood-altering drug is a common positive feedback process. So ये जो amplification process है ना, जो मैंने अभी बताया कि अगर तुम इस पे एक्ट नहीं करोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा और एक पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा जहाँ से रिकवर बैक करना पॉसिबल नहीं होगा. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ समथिंग वी कॉल एज फीडबैक लूप. फीडबैक लूप भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट आई गेस देयर इज नो नीड ऑफ डिवेल्विंग in too much detail in those topics in this video. We might cover it in some another video. So from this point we move on to another section where all this theory finally starts to make sense again. That is, why do people get bully? People जो लोग होते हैं वो बुली क्यों होते हैं? उसके दो तीन रीजंस हो सकते हैं कि भाई, एक हो सकता है कि बंदे में पोटेंशियल ही नहीं है फाइट बैक करने का, कि मैंने अगर किसी को बुली किया, अगर किसी ने मुझे बुली किया और वो मेरे से बहुत ही ज्यादा तगड़ा है एंड आई कैन नॉट इवन फाइट बैक, मुझे पता है कि अगर मैं वापस लड़ा तो मुझे ही कूट दिया जाएगा, सो आई वोंट फाइट बैक. अनदर रीजन इज दैट पीपल थिंक दैट दे आर मोरली सुपीरियर टू दोज हु आर बुलिंग देम. लोगों को लगता है कि लोगों को दया आने लग जाता है कि चल ये बेचारा है ना, अज्यूम करने लग जाते हैं जस्ट टू गेट आउट ऑफ इट कि आई एम नॉट, माई मॉरल्स आर नॉट समथिंग जो इसके मॉरल्स हैं, है ना, कि ये कर रहा जरूर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी करूं सेम चीज, मैं उसको फाइट बैक करूं, कि अल्टीमेटली दिस विल स्टॉप. So people think that it's their moral responsibility to ignore all that stuff because they are morally superior to those. But in my opinion, it's wrong, because this only gives the invitation to the bully to bully that particular person even more. अगर मैं किसी को आज बुली कर रहा हूँ और उसने मेरे को फाइट बैक नहीं किया, तो मेरे लिए तो ये इन्विटेशन हो गया ना कि ये बंदा मेरे को जवाब नहीं दे रहा है, ही इज नॉट फाइटिंग मी बैक, तो मैं उसको और बुली करूंगा. क्योंकि बुली करने का रीजन क्या होता है? इट इज नॉर्मली टू एक्सप्रेस, टू बी इन दैट स्टेट ऑफ पावर जहाँ पे मेरे को पता है कि मैं इस बंदे से ऊपर हूँ, है ना. इंसान बुली तभी करता है जब उसको ये होता है कि जब उसको डोमिनेंस अपनी एक तरह से प्रूव करनी होती है किसी और के ऊपर. तो अगर सामने वाला बंदा रिटेलिएट ही नहीं कर रहा, रेजिस्ट ही नहीं कर रहा, तो मैं क्यों रुकना पसंद करूंगा. तो ये मेंटालिटी बुली की बन जाती है, और वो मेंटालिटी जो फाइट बैक ना करने की है, वो जो बुली हो रहा है उसकी बन जाती है. बिकॉज ऑफ दैट चीज़ें काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक भी चली जाती हैं जहाँ पे ट्रॉमास वगैरह लोग एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं. So those who bully others are looking to gain a feeling of power, purpose and control over you. If you don't fight back, then bully करने वालों को और confidence मिल जाएगा and they'll continue to bully others as well. Sometimes people feel कि वो अच्छे लोग हैं
एंड हेंस दे बिकम अच्छे लोग. समटाइम्स पीपल थिंक कि वो अच्छे लोग हैं एंड हम बुली करने वालों को कुछ नहीं कहेंगे बिकॉज वी आर नॉट बैड पीपल लाइक देम. हेंस दे बिकम एन इन्विटेशन ऑफ बुलिंग देमसेल्व्स. ये चीज देखी गई है कि लोग नॉर्मली बैटल फील्ड्स वगैरह में उस तरह से, क्योंकि बैटल फील्ड्स में क्या होता है, मजबूरी होती है एक इंसान की, है ना, कि अगर नहीं तमीज, अगर बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन है तो एक्सट्रीम काम ही करना पड़ेगा अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना है, वरना हम मर जाएंगे. तो ये चीज हमने अपने दोस्तों के साथ भी देखी होगी कि जो सबसे ज्यादा शांत रहते हैं, अगर एक बार वो वाइल्ड मोड में घुस जाएं तो वो सबको हिला के रख देते हैं और शॉक में डाल देते हैं. हमारे साथ अभी हुआ भी था अभी 2-3 दिन पहले इन द बास्केटबॉल कोर्ट. लाइक दैट्स अ स्मॉल स्टोरी. एक बंदा है जो हमेशा बहुत ही शांत रहता है, पर एक टीममेट ने उसे इतना ज्यादा ट्रिगर कर दिया था दैट he literally started shouting on him. He started pushing him around. That was the first time I saw him that aggressive. तो जब जो ऐसे सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, जब इस वाइल्ड मोड में चले जाते हैं, देन दे गेट अ शॉक. उनको ये रियलाइजेशन हिट होती है कि भाई क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो लगा था मैं अच्छा इंसान हूँ. एंड अगेन दिस हैपेंस इन बैटलफील्ड्स इन एक्सट्रीम सिचुएशंस व्हेन द सोल्जर्स समटाइम्स हैव टू एक्ट इन अ वे दैट दे नेवर इमेजिन्ड दे डू. बैटलफील्ड्स में कुछ नहीं पता इंसान को क्या करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई दिस ट्रॉमा दे गो थ्रू. लाइक मोस्टली बैटलफील्ड के बाद सोल्जर्स को एक थेरेपी के थ्रू गुजरना पड़ता है बिकॉज दे जस्ट डिड समथिंग दे नेवर इमेजिन्ड दे वुड डू. Yeah, and this idea can also be related to the fact that कि भाई this was an idea of Carl Jung, I think, or Friedrich, another philosopher. So the idea basically says that all of us are capable of evil. There is no moral virtue in being meek or harmless. And by harmless, I don't mean you should harm someone. I just mean that, or the author just means that you should have the strength of character or a backbone to stand up for yourself or to stand up for anything wrong that is going on in the society and you think that should be stopped. So you need to have that capability to stand up and not try to inculcate more moral virtue on the basis of being meek or harmless. Yeah, exactly. I absolutely agree with you on this. So emotions is something that plays a very heavy role on this. Emotion is nothing but a partly bodily expression and can be amplified by that expression. जिस तरह से आप रहोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी तरह से हो जाएगी. अगर आप खुद को ही लोली कंसिडर करोगे सोसाइटी में, इफ यू थिंक यू कैन नॉट फाइट बैक, अगर आप खुद ही हार मान लोगे, तो सारा समाज, सारे लोग आपको उसी नजरों से देखेंगे that person, this person cannot fight back. They'll treat you as a lower, as their inferiors. Whereas if you walk with confidence on your shoulders, then people will start treating you with respect. And this is again something that I have experienced. जब आप किसी नई जगह जाते हो, like my father had a transferable job, और काफ़ी सारी जगहों पे मैं जा रखा हूँ, काफ़ी सारे स्कूल्स मैंने चेंज करे हैं, काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला हूँ. सो जब भी नया स्कूल मैं कोई चेंज करता हूँ तो सारे लोग तो मेरे लिए अननोन है, तो मेरे मन में तो ये डर ही बैठा रहता है कि भाई कैसे लोग निकलेंगे, कैसे दोस्त बनेंगे मेरे, है ना. और मैं अकेला ही न्यू एडमिशन नहीं होता किसी स्कूल में एक सेशन में काफ़ी सारे न्यू एडमिशन जाते हैं. तो ये चीज़ मैंने शुरू से ही अपने अंदर कोशिश करी है कि अगर मैं किसी नई जगह जा रहा हूँ तो मेरे को अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है क्लासमेट्स पे भी और टीचर्स पे भी. तो वहाँ से मेरे को मैंने ये चीज़ देखी कि जब मैंने ये चीज़ करी कि भाई मैं कॉन्फिडेंस में रहा, मैंने पहले ही दिन आके सारे टीचर्स के सारे सवाल के जवाब दे दिए, मैंने पहले ही दिन आकर अपने सारे क्लासमेट से बात कर ली कि कौन कैसा, ये जानने की कोशिश करी किससे मेरी वाइब मैच हो रही, जानने की कोशिश करी, उनके बारे में उनसे बात करी. आई सॉ दैट दे वर मच मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी रादर देन दोस अदर न्यू एडमिशंस जिन्होंने ये सारे एफर्ट्स नहीं लिए, जो अंडर कॉन्फिडेंट होके कोने में बैठे रहे. एंड अल्टीमेटली ये चीज़ एंड तक खींची. जो लोग शुरू में नहीं बोले, उनके एंड तक उनको एज एन अंडर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल ही देखा गया. सो ये चीज़ है जो होती ही है. राइट, मेरा भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस है. व्हेन आई वाज इन क्लास 7th, फ्रॉम 6th to 8th, आई हैड क्विक सक्सेशन. आई हैड अ चेंज ऑफ स्कूल इन क्विक सक्सेशन. अराउंड 4 से 5 स्कूल चेंज हुए थे मेरे बिकॉज ऑफ ट्रांसफर रीजंस एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बेसिकली उसमें मैंने एक चीज़, लोग हर जगह अलग थे, सिटीज अलग थी, लेकिन एक चीज़ हर जगह कांस्टेंट थी. एग्जैक्ट सेम चीज़ हर बार होती थी. मैं क्लासरूम में जाता था, 1-2 दिन होते थे, लोग न्यूट्रल रहते थे कि भाई ठीक है, क्या है, ठीक है. अगर मैं कॉन्फिडेंट होता था तो लोग दे यूज्ड टू स्टेप बैक कि भाई ठीक है, बंदा ठीक है, एज सच वी कैन नॉट मो हिम ओवर, राइट. फिर मार्क्स वार्क्स आते थे, वो देखते थे कि भाई ये बंदा तो पढ़ने में अच्छा है, तो दे यूज्ड टू ट्रीट मी इन अ डिफरेंट मैनर एज अपोज टू अदर न्यू एडमिशन जस्ट लाइक यू.
कि भाई जो बंदे लेट्स से मे बी उनका रिजल्ट ये एस्टैब्लिश नहीं कर रहा था कि भाई वो एक टैलेंटेड इंडिविजुअल है, या फिर वो खुद जिस तरह से खुद को कैरी कर रहे थे वो भी एस्टैब्लिश नहीं कर रहा था कि वो टैलेंटेड इंडिविजुअल है, तो इवेंचुअली वो चीज़ एक नेगेटिव फीडबैक लूप में जा रही थी उनके लिए, क्योंकि दूसरे लोग उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे थे। और सोशल फीडबैक इज काइंड ऑफ इज ए फैक्टर विच अफेक्ट्स दैट हायरार्किकल काउंटर इन आवर माइंड। तो क्योंकि उन्हें वो खुद को ढंग से कैरी नहीं कर रहे थे, तो सोशली उन्हें ढंग से रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी, और क्योंकि सोशली ढंग से रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी, तो वो खुद को ढंग से कैरी नहीं कर रहे थे, तो ये साइकिल भी फॉर्म होती है। या एग्जैक्टली, मतलब कई बार ऐसा भी होता था कि जो न्यू एडमिशंस हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकलते थे, पर क्योंकि वो उन्हें जस्ट लाइक यू सेड उन्हें कैरी करना नहीं आता था खुद को, उन्हें लोगों से उस तरह से बात करनी नहीं आती थी, तो लोग उन्हें पहचानते नहीं थे ढंग से, और एंड तक फिर लोग उन्हें उसी तरह ट्रीट करते थे, जैसे बिकॉज वी से दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वही चीज़ फिर उनके साथ होती थी वहाँ पे। अगर ऐसा थोड़ी है कि अगर मेरे शुरू में मार्क्स आ गए तो मेरे हमेशा ही मार्क्स आए हैं, पर लोगों का ओपिनियन उस बाद में जाके इतना चेंज नहीं होता, क्योंकि उन्होंने शुरू में देख लिया ये बंदा कॉन्फिडेंट है, तो ये अगर हो सकता है अभी मार्क्स कम आए हो तो कोई रीजन रहा होगा, बाद में अच्छा कर लेगा। वेरएस कोई न्यू एडमिशन है, उसके अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो उसे उस तरह से देखा जाता है कि इसके मार्क्स शायद धोखे से आ गए होंगे, इसके मार्क्स कम आते हैं। तो ये चीज़ है कि आपको जब आप समाज में चल रहे हो, व्हेन यू आर इन द सोसाइटी, यू नीड टू कैरी योरसेल्फ एज द इंडिविजुअल यू वांट अदर्स टू सी यू। तो चैलेंजेस रहेंगे नो मैटर व्हाट, इट्स अप टू अस वेदर वी वांट टू एम्ब्रेस देम विद ओपन आर्म्स, or we want to simply accept defeat and take them on with a lost mind. Your nervous system responds differently when you face the demands of life voluntarily. To stand up straight with your shoulders back is nothing. अगर ऐसे summarize किया जाए एक लाइन में, then it is to accept the terrible responsibility of life voluntarily with an open mind. जिस तरह से आप किसी challenges तो हमेशा रहेंगे यार, हर point of life पे आपको different choices बनानी होंगी, आपको different tasks दिए जाएंगे जिसमें आपको excel करना होगा। अब दो options हैं, आउटकम तो ये है कि या तो आप चैलेंज सक्सेसफुली टैकल कर लोगे या फिर आप नहीं कर पाओगे। अब उसको आप एम्ब्रेस करके करते हो या उससे भाग भाग के करते हो, वो आपके हाथ में। एम्ब्रेस करके करोगे तो आपका कैरेक्टर डेवलप होगा, समाज की नज़रों में आप ऊपर जाओगे, एंड आप हारो या जीतो उससे फर्क इतना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। अभी नहीं तो आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। हमेशा जीतना जरूरी नहीं है, बट टू एक्सेप्ट दोज चैलेंजेस इन योर लाइफ इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ देखी होगी, आई एम श्योर तूने भी देखी होगी, कि कोई बंदा हारता है और वो बंदा खुद को अच्छे से कैरी कर रहा है, तो लोग उसकी तारीफ ही करते हैं कि भाई ये हार के भी बंदा खुश है, हार के भी ये उस डिप्रेशन वाले मोड में नहीं चला गया जहाँ पे लोग चले जाते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट इवन द सोसाइटी एक्सेप्ट्स एंड अप्रिशिएट्स. So the whole crux of this chapter was, in my opinion, with the help of all these background metaphors, as you just said in the beginning, was to accept the challenges of life with an open arm and just see whatever happens. Right. I agreed completely. I think let's contrast this final conclusion to the point from where we began. That is the lobsters. Now, the lobsters are kind of a slave to their chemical pathways or neural pathways in their brains. They are not very cognitively evolved as much as we are. So once a lobster is defeated, it is very random, or the spike of serotonin to motivate him again, the lobster again, to fight again, to establish a better position than the lobster currently has after the defeat, is very rare, very less. So the lobster is bound to that chemical system, but the difference between lobster and us is consciousness. We can consciously decide that okay, अभी हमें अच्छा feel नहीं हो रहा है, we are feeling defeated, but we have the free will, the willpower to push ourselves nevertheless. So from the negative loop कि भाई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो खराब फील हो रहा है, तो खराब फील हो रहा है तो हम ट्राई नहीं कर रहे, और ट्राई नहीं कर रहे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, इस लूप से निकल सकते हैं हम कि भाई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो अच्छा फील नहीं कर रहे, लेकिन अच्छा फील नहीं कर रहे डिस्पाइट दैट वी आर वर्किंग हार्ड, तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो अच्छा फील कर रहे हैं, और अच्छा फील कर रहे हैं तो और काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो फ्रॉम ए नेगेटिव फीडबैक लूप वी कैन ट्रांसफर टू ए पॉजिटिव फीडबैक लूप बिकॉज ऑफ आवर फ्री विल. So yeah, exactly. So this was it for chapter 1. I guess we have covered most of whatever was written inside it. Now we want to move on to chapter 2, or I should say the second rule of the book, that is treat yourself like someone you are responsible for helping. Right. So we can first of all think of this rule as in a literal sense.
So treat yourself like someone you are responsible for helping. So we are looking at ourselves in a third person perspective and basically aligning responsibility to take care of that person, which happens to be us, right? But the metaphorical meanings that Jordan Peterson derived in this chapter is absolutely fascinating, especially because of the fields that he touches upon. We dive in psychology and philosophy and history and religion to derive upon a certain conclusion through this chapter. Okay, so let's begin. Let's talk about the results of a very interesting case study that was conducted some years ago. When doctors prescribe a medicine, 30% of the patients don't take it properly, and that number only increases over time at an agile rate, right? Some might not even take it at all. Let's talk about the disease of kidney. In the case of kidney failure, the patient has to go through consistent dialysis that takes up to 8 to 10 hours daily, up to 6 days a week. So that is a very hectic and time consuming, let's say, process. It leaves the person helpless. एंड इट गेट्स ओनली वर्स विद टाइम. ये चीज सुधरते भी नहीं है. जो डायलिसिस वाली चीज है, द रेट ऑफ डायलिसिस, द रेट ऑफ यू विजिटिंग अ हॉस्पिटल ओनली इंक्रीजेस विद टाइम. इनिशियली इट माइट बी वंस अ वीक, देन इट ट्वाइस अ वीक, देन इट इज थ्राइस अ वीक एंड सो ऑन. इट ओनली इंक्रीजेस. Right, absolutely. And the cure to dialysis seems to be basically kidney transplant is the only option, right? The problem with kidney transplant is very few people donate their organs, and very few living people, even fewer living people, donate their organs. So, getting a kidney which matches with the parameters strictly of the patients which needs to recover, which receives that kidney, is very less. And once the patient receives a proper kidney, even then body rejects it because it is a foreign object to the body, and the nervous system of the patient's body always attacks it. So once a new kidney has been surgically implanted in the patient, even though the body is resisting it, there are certain drugs that the patient needs to take so that their kidney can be accommodated and patient can live a healthy life. So the problem is that people still don't take that medicine, and even though that not taking that medicine can certainly lead to kidney failure again, and that can also lead to death. So even when it comes to life and death, there are people who do not take care of themselves. They do not take the medicines properly. And why is that? Physicians and pharmacists tend to blame such patients for their non-compliance and inaction and error. Though psychologists, on the other hand, think that it is the job of the doctors to make sure they figure out any other underlying physical or mental problems that the patients might be having, which leads them not to consume the medications on time. So now why is that? Why do people still not take medicines even when it is a life or death situation? Let's dive in some ancient texts and psychology to find the answers. The world can, in some sense, like you said, be divided in two major states: order and chaos. Order can be termed as what we know, what we understand, what we are comfortable with. In a physical sense, imagine our ancestors. We are living in a jungle. So, in that sense, order is a place where we live, our home, the areas around it that we have already explored. Chaos can be thought of something that we haven't explored yet, what we don't know. Let's say we know the dangers around our home in an explored area of the jungle. We know the kinds of animals, etc., that are found there and how to be safe from them. But we do not know the dangers that lie outside the boundaries of our explored zone, and that area can be called chaos. So basically, from what I'm understanding by your speech, by your words, is that anything that is not order is basically chaos. मतलब अगर हमें कहीं 12 बजे पहुंचना है और हम 10 मिनट लेट हो गए तो वो chaos है. हम 12 बजे पहुंचे तो वो ऑर्डर है. अगर किसी टेस्ट में हम 25 में से 25 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और 24 या 23 आ गए तो वो हमारे लिए chaos है. बट अगर 25 में से 25 आए तो वो हमारे लिए ऑर्डर है. सो एनीथिंग दैट इज नॉट ऑर्डर इज chaos, and anything that and the results that are not expected by us is chaos. And if we get the result exactly as expected or even better than what we expected, then it is basically order. Right. So that is another way of thinking of it psychologically and in quite a relatable way. Okay.
So let's dive deeper in the ancient texts. The ancient texts communicate the subconscious understanding of various underlying tenets of the society and the individual through metaphorical stories, as stories seem to be the very fabric of human communication for complex concepts. Look around you, movie, music, जो हमारे मेजर सोर्सेज होते हैं एंटरटेनमेंट के, उनमें हमेशा स्टोरीज होती हैं. लेट्स से वेब सीरीज हो गई या मूवीज हो गई या सॉन्ग्स हो गए. लेट्स इवन कंसिडर स्पोर्ट्स में अगर मैं रिसेंट एग्जांपल लूं तो विराट कोहली वाज गोइंग काइंड ऑफ थ्रू ए डाउनफॉल रिसेंटली. जितनी हम जिस लेवल का क्रिकेट उनसे एक्सपेक्ट करते थे उस लेवल का क्रिकेट हम नहीं देख रहे थे, बट रिसेंटली ही मेड ए कम बैक और बहुत ही अच्छा उन्होंने कम बैक किया है. तो दैट इज समथिंग दैट वी लाइक्ड अ लॉट. सो दैट इज ए स्टोरी, दैट वाज ए स्टोरी कि भाई पहले बंदा बहुत पीक पे गया, फिर बहुत डिक्लाइन पे आया, फिर से पीक पे आया. That is a story. Rivalries between teams like India versus Pakistan cricket matches are always high octane action packed matches. चाहे फिर वो फाइनल भी ना हो, चाहे फिर वो लीग मैच ही है जैसे कि नेक्स्ट वीक है, स्टिल वी लाइक इट अ लॉट बिकॉज इट इज ए decade old rivalry, and that also is a narrative or a story, right? So complex concepts regarding values and such are communicated over generations using stories as a means of transfer because that is in our DNA. Yeah, exactly. So that is why, if you can remember, we used to have subjects like moral science back in our second and third. उस टाइम तो वो बड़े बोरिंग से सब्जेक्ट्स लगता था इनमें क्या ही आसान से हैं. बट द साइकोलॉजी behind having that subject was to impart the knowledge, to impart the morals, to impart the values to a child in the form of a story, because it is much more perceivable, much more understandable than a plain text written honesty is the best policy. Like अगर हम किसी कोट या किसी मॉरल को एक स्टोरी के साथ अटैच कर दें तो उसको याद करना, उसको दिमाग में रखना रिलेटिवली ज़्यादा सिंपलर होता है एज कम्पेयर टू सिर्फ एक टेक्स्ट हमारे सामने लिखा है. अगेन इसका एक रिलेटेबल एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, हमें मूवीज की स्टोरीज याद रह जाती हैं पर हमें अपने एग्जाम, स्कूल से कॉलेज एग्जाम्स के मटेरियल, नोट्स, थ्योरी याद नहीं रहती. इसीलिए नहीं रहती क्योंकि वो स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं है, ये प्लेन टेक्स्ट है जो हमें सिंपली क्रैम करना है. और इसीलिए जो टीचर्स स्टोरी के थ्रू किसी कंसेप्ट को समझाते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है और वो टीचर्स भी हमें जनरली ज़्यादा पसंद आते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू निमोनिक्स. हमें वो चीज़ें भी ज़्यादा याद रहती हैं जिसमें हम निमोनिक्स बना लेते हैं एंड काइंड ऑफ मिनी स्टोरी बना लेते हैं. जैसे पीरियोडिक टेबल जब याद करते थे उसमें भी डाउन द ग्रुप एंड डाउन अक्रॉस द पीरियड्स हमें ऐसे ही याद रहती थी चीज़ें, राइट? In the book Sapiens, it is explored that one of the reasons that humans were able to form large groups was because of the capability to have a shared imagination of certain things. एक गांव कंसिडर करते हैं जिसमें एक किंग है and king has his own ministers. Those ministers control the guards and those guards patrol the peasants या प्रजा basically. तो वो चीज़ अगर हम साइंस के लेंस से देखें तो एक किंग भी होमोसेपियन है और एक प्रजा का इंसान भी होमोसेपियन है, मिनिस्टर भी होमोसेपियन है, लेकिन ये स्टिल एक स्ट्रक्चर में है. जो चीजें किंग कर सकता है वो एक पेजेंट नहीं कर सकता. किंग जो ऑर्डर्स दे सकता है वो एक पेजेंट नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि हम वहां पे लोग एक उस गांव में एक सोशल स्ट्रक्चर में जी रहे हैं जिसमें किंग आता है, फिर मिनिस्टर्स, फिर गार्ड्स एटसेट्रा. तो ये सोशल स्ट्रक्चर सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है जब सारे लोग उस चीज को इमेजिन करें. सारे लोग अग्री कर रहे हैं कि भाई ठीक है, एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, साइंटिफिक बेसिस पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक इमेजिनेशन है. लेकिन स्टिल क्योंकि सारे लोग अग्री कर रहे हैं इसलिए वो एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है इसलिए सारे लोग अग्री कर रहे हैं. तो इट्स काइंड ऑफ ए लूप. अगली जनरेशन जब पैदा होंगी तो उनके पेरेंट्स उन्हें सिखाएंगे कि भाई ये किंग होते हैं, ये मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसे मान जाएंगे भले उनको उसका रीजन ना पता हो. तो having a shared imagination, basically, it only works when everyone has imagined the same reality, and this allows for humans to cooperate on large scales. अगर किंग ऑर्डर करेगा तो पूरा गांव, सारे पेजेंट्स, मिनिस्टर सब लड़ने चले जाएंगे. एट द एंड वो एक ह्यूमन है जो दूसरे ह्यूमंस को कुछ करने के लिए बोल रहा है, और वो हजारों, 2000, 3000 ह्यूमंस मान रहे हैं उसकी बात, क्योंकि वो एक शेयर्ड स्ट्रक्चर के टॉप पे है, राइट? So this allows for humans to cooperate on large scales. Do you know what else falls in the domain of shared imagination? Stories. Now another problem arises. How do you communicate systems of complex values over thousands of years and generations? The easiest way is to make them interesting, which again leads us to the stories, because we definitely find them interesting.
Ancient religious texts consist of stories which contain within it the wisdom which has been modified over millions of years by human generations and presented in the form of a set of stories. The humans thousands of years back and humans now share similar problems regarding happiness, pain, grief, anger, social coordination, the nature of reality, etc. The brilliant thinkers have derived a set of values which we get to access through these narratives. हम ये चीज देख सकते हैं कि जैसे कि वाइकिंग्स के टाइम में क्या होता था, वाइकिंग्स वर ब्रूट्स. So Vikings basically attacked villages. They sold off the females and children as slaves. They acquired all the resources, stole it basically, and they killed off the men of that particular village. Everyone was very selfish. And this was mostly in the European nations. And then the emergence of Christianity in those regions also brought about a change in the values of people. कि भाई ये करना गलत है. उस टाइम पे अगर आप ह्यूमंस जितना हमने स्टडी किया हिस्ट्री में, हमने देखा उस टाइम पे ये चीज गलत किसी को नहीं लगती थी. उस टाइम पे अगर आप उस विलेज में होते जहाँ जिसको अटैक किया गया है और जहाँ लोगों को मारा गया, तो आपका पहला थॉट ये होता कि यार किस्मत खराब थी. ये नहीं कि आपके साथ गलत हुआ है, आपने एक्सेप्ट कर रखा था कि ये तो होता ही है. लेकिन रिलीजन की इमर्जेंस ने इन चीजों को चेंज किया. रिलीजन ने धीरे धीरे वैल्यूज इनकलकेट की. अब दिक्कत ये होती है जैसे कि हमारे इंडिया का एवरेज IQ है 81. अराउंड 75 IQ पे आप पढ़ लिख नहीं सकते. तो आप अगर सिर्फ पढ़ लिख भी नहीं सकते तो इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज की चीजें, मर्डर या मारना तो सिर्फ एक चीज है. मर्डर हो, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, मैरिजेस, दी सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे प्रोपेगेट की जाएं जनरेशन टू जनरेशन, जो कि इजीली हो जाए. तो रिलीजन टेक्स द यूज ऑफ स्टोरीज एंड फॉर्म स्टोरीज विच कंटेन्स दिस वैल्यूज, जो कि जनरेशन, जैसे कि हमें हमारे दादाजी और पेरेंट्स जो स्टोरीज बताते थे, सिमिलरली रिलीजन वो स्टोरीज के थ्रू वैल्यूज कन्वे कर देता है अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस. नाउ लेट्स कम बैक टू ऑर्डर एंड chaos. Order is often characterized as masculine and chaos as feminine in the narratives. Existence of these in the human experience is expressed in many religions. In Hinduism, Shatkona or a six-pointed star consists of two interlocking triangles. तो basically दो triangle होते हैं षटकोण अपने हिंदुइज्म में. उसमें टॉप ट्राइंगल डिनोट करता है शिवा को, दी पुरुषा और दी मैस्कुलिन. बॉटम ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है शक्ति को, शक्ति और नेचर और द फेमिनाइन. सेम चीज हम शिवलिंग में भी देख सकते हैं. इन शिवलिंग द मेन शिवलिंग पार्ट इज शिवजी basically. He denotes the masculine part, and the Nagendra part, the snake part, which snakes are often related to chaos or fear. That represents the chaos part. तो ये चीज वहां पे भी ऐसे ही कम्युनिकेट की गई है. Okay, so Shakti is known as Om in Sanskrit and Shiva is known as Hrim in Sanskrit. तो ओम ह्रीम अगर हम बहुत मंत्रों में सुनते हैं तो ओम इज डिनोटिंग शक्ति एंड ह्रीम इज डिनोटिंग शिवजी basically, right? In Christianity, two such analogous representations are prevalent. In Buddhism और Taoist Buddhism too, क्या कहते हैं, यिंग यांग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक व्हाइट फिश जिसपे एक ब्लैक डॉट होता है और एक ब्लैक फिश जिसपे व्हाइट डॉट होता है. That also conveys similar concept. Something similar to that in a kung fu symbol, right? Exactly, that one. Since order is related to protection and stability, it might seem that being in a state of order is ideal, but order is not enough. You can't just be stable and secure and unchanging because there are still vital and important things to be learned. Nonetheless, chaos can be too much. You can't long tolerate being swamped and overwhelmed beyond your capacity to cope while you are learning what you still need to know. Thus, you need to place one foot in what you have already mastered and understood, and the other in with what you are currently exploring and mastering. Then you have positioned yourself where the terror of existence is under control and you are secure, but where you are also alert and engaged. ये चीज हम रियल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि when you are studying something challenging, in the psychological studies that scientists have done, we have found out कि हम कोई भी सब्जेक्ट को सबसे इंटरेस्टिंग हमें तब लगता है जब हम करंट अपनी एक्सपर्टीज लेवल से जस्ट ऊपर हों. जैसे कि अगर हम कोडिंग की बात करें तो हमें एक सर्टेन लेवल तक के क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें उस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मजा आएगा या इंटरेस्टिंग या इंजॉयबल लगेगा जो क्वेश्चन हमारी रीच से जस्ट बाहर हो.
तो उस लिमिट से नीचे वाले क्वेश्चन सारे ऑर्डर हैं, क्योंकि हम वो आराम से कर सकते हैं, दैट इज ए कंफर्ट जोन फॉर अस, वहां पे हम आराम से कर लेंगे। और उस लिमिट से ऊपर सारी हमारे आउट ऑफ कंफर्ट जोन है या केओस है। लेकिन अगर हम उस ऑर्डर वाली जोन में रहेंगे तो हम कभी ग्रो नहीं करने वाले। लेकिन अगर हम सीधा केओस के टॉप लेवल पे चले जाएंगे तो हम हार मान के वापस आ जाएंगे। तो बेस्ट प्लेस टू बी इज जस्ट अबव ऑर्डर, सो वन स्टेप इन ऑर्डर एंड अनदर स्टेप इन केओस। राइट, इसको रियल लाइफ में एक और चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप सीजन चल रहा था, तो सब उसी की तैयारी कर रहे थे। फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस हमारी इंटर्नशिप लग गई, तो तब से हम खाली ही बैठे हैं एक तरह से। तो दैट इज आवर स्टेट ऑफ ऑर्डर। पर क्योंकि अब हमारे पास करने के लिए ही कुछ नहीं है, तो दैट हैज स्टार्टेड टू बिकम केओस फॉर अस, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप किसी पॉइंट पे पहुंच जाओ तो योर स्कोप ऑफ लर्निंग एंड्स, ऐसा नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी स्किल है जो आपको एक्वायर करनी चाहिए, आपको जो आपके रीच से, एज यू जस्ट सेड कि हमारे रीच से हमेशा ऐसी चीज रहेगी जो हमारी रीच से अभी बाहर है। तो 100% order and 100% chaos is not always ideal, as you just said again. There is always scope of improvement. There is always scope of a challenge wherein you can challenge yourself, you can learn new things, you can master new skills, and you can again improve your social rank in this society. Right. There is also another idea of motherly and fatherly influence on kids, and this was a psychological study. I learned about it in another book. So basically उसका आइडिया इन क्रक्स ये था कि भाई मदरली लव क्या होता है, अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन इफ ए मदर प्रोटेक्ट्स हर चाइल्ड टू मच, कि भाई रियल लाइफ से एकदम ही डिस्कनेक्टेड है बच्चा, कोई रियल डेंजर्स के बारे में जानता ही नहीं, तो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड, क्योंकि कभी ना कभी तो वो रियल लाइफ में जाएगा। और अगर वो छोटे रियल लाइफ के चैलेंजेस से टैकल करना नहीं जानता तो बड़े चैलेंजेस से तो नहीं कर पाएगा। तो दैट इज ऑर्डर, मदरली ऑर्डर। तो आप अगर ऑर्डर में ज्यादा हो, प्रोटेक्शन में ज्यादा हो उनके, लेट्स से फीमेल फिगर के, मदरली फिगर के, तो दैट इज हार्मफुल। लेकिन सिमिलर चीज फादरली सेंस पे भी है। फादर्स का रोल इन ट्रेडिशन ये होता है कि भाई ठीक है, डांट वाट के रियलिटी दिखाना वर्ल्ड की, कि भाई उन्हें चैलेंजेस से टैकल करना सिखाना वर्ल्ड। लेकिन अगर उसमें मदर का रोल नहीं होगा, सिर्फ फादर का रोल होगा, तो उसमें हमने ये देखा जाता है बच्चों में कि भाई वो ज्यादा केओस हो जाता है, कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि बच्चा डील नहीं कर पाता इस चीज से। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव बोथ पेरेंट फिगर्स इन योर लाइफ, एंड दैट इज वाई कि भाई जिन लोगों का कोई पेरेंट फिगर नहीं होते उन्हें काफी दिक्कत होती है। Okay, so now let's come back to the answer to the question we began with, and dive in a bit of history and bring it all together to answer the question. The world was a brutal place before the emergence of the major religions. Conflict was everywhere. Human sacrifice, including that of children, was a common occurrence even in technologically sophisticated societies such as the ancient Carthage. In Rome, arena sports were competitions to the death, and spilling of blood was a commonplace. The primary moral issue confronting society was control of violent, impulsive selfishness and the mindless greed and brutality that accompanies it. People with those aggressive tendencies still exist. Over time, we overcame that, but now another opposite problem has resurfaced. People bear intolerable burdens of self-disgust, self-contempt, shame, and self-consciousness. Thus, instead of narcissistically inflating their own importance, they don't value themselves at all, and they don't take care of themselves with attention and skill. It seems that people often don't really believe that they deserve the best care, personally speaking. So the thing is, पहले हम एक दूसरे स्पेक्ट्रम पे थे, स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे थे कि भाई एक्सट्रीमली सेल्फिश, एक्सट्रीमली ब्रूटल। अब हम स्पेक्ट्रम के दूसरे सेल्फिश पे एंड पे चले गए हैं कि भाई we don't care about ourselves as much, or we don't have that self confidence or self care at all. Maybe ये चीज सोशल मीडिया की वजह से भी बढ़ी है, एम्पलीफाई हुई है कि भाई we see the perfection, that's the problem, that's a problem with hierarchy, but maybe that is the tax we pay for ambition. कि भाई आप अगर अपने ऊपर देखोगे, तो अगर आप जस्ट ऊपर अपने बंदे को देख रहे हो तो आपको ये लगेगा कि आप अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर हम हायरार्की अगर हम इलॉन मस्क को देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई हम वो तो अचीव नहीं कर सकते। तो उससे कभी कभी, और मोस्टली सोशल मीडिया की वजह से, हम ये सोच लेते हैं कि हम तो बेकार हैं। बट
कि भाई अगर आप टॉप पे नहीं हो तो आप बेकार हो, ये आइडिया गलत है. जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इलॉन मस्क, you that doesn't mean you are worthless, right? As long as you are evolving and you are improving yourself, that means you are someone worth respecting and worth caring for, right? You are not simply your own possession to torture and mistreat. This is partly because your being is inexorably tied up with that of others, and your mistreatment of yourself can have catastrophic consequences for others. ये चीज में एक सुसाइड वाला एग्जांपल भी रिलेट होता है, जो कि ऑटसन ने मेंशन किया था कि भाई बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं. वो चीज बहुत एक सेल्फिश चीज है, क्योंकि उससे आप तो चले गए, जो कि गलत है ऑब्वियसली, लेकिन आपके जो फैमिली थी, आपके जो जानने वाले थे, आपके जो फ्रेंड्स थे, उन पर बहुत खराब इफेक्ट पड़ा है, और वो एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा देके गए हो आप बेसिकली. तो इसका मतलब है आप सोसाइटी के एक पार्ट हो, यू आर वैल्यूड, इसलिए उन्हें खराब लगा है. तो आपको खुद को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस ऑफ अदर्स इन सम सेंस, राइट? You need to consider the future and think, what might my life look like if I were caring for myself properly? What career would challenge me and render me productive and helpful so that I could shoulder my share of the load and enjoy the consequences? What should I be doing when I have some freedom to improve my health, expand my knowledge, and strengthen my body? You need to know where you are so you can start to chart your course. Don't undermine the power of vision and direction. These are irresistible forces, able to transform what might appear to be unconquerable objects into traversable pathways and expanding opportunities. Strengthen the individual, start with yourself, take care with yourself, define who you are, refine your personality. And you can begin all this by treating yourself as if you were someone you were responsible for helping. There was यहाँ पे एक आइडिया और ऑथर का जो मेरे को बहुत पसंद आया, ये था कि भाई इफ यू आर सेइंग सम लेट्स से समथिंग यू डिसएग्री विद, समथिंग यू थिंक इज रॉन्ग ऑन अ बिग लेवल, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज चेंज योरसेल्फ. First of all, fix your own problems, get disciplined. After you are at a good place in your life, help your family get disciplined and get orderly and fix their problems. Once you are able to do that, which is a very difficult task in itself, look at the locality around you, look at your neighbors, etc., and find out the problem that they are facing and try to solve that. And that will eventually lead you to solve the bigger problems of the society. Yeah, exactly. And one more thing, like this is, sorry to interrupt, this is just the order and chaos thing that you said. इस पे एक एग्जांपल और आया मेरे दिमाग में, जो काफ़ी सारे लोग मेरे हिसाब से और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. जब हमारे स्कूल में एग्जाम्स खत्म हो जाते थे तो शुरू में तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था, एग्जाम्स खत्म होंगे तो मज़े करेंगे, है ना, 15-20 दिन मिलेंगे, फुल एंजॉयमेंट करेंगे, खेलेंगे, दिन भर खेलेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, जो काम एग्जाम्स के चक्कर में नहीं कर पाए वो सारे करेंगे. बट वंस दोज एग्जाम्स आर एक्चुअली ओवर, पहले 2-3 दिन तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, बट उसके बाद वो बोरियत ही आने लग जाती है हमारे दिमाग में कि भाई अब क्या करें, दिमाग खराब होने लग जाता है. So yeah, this is just something I wanted to point out in that order and chaos thing. And one more thing that I'd just like to express is about Jordan Peterson that I liked about him, was that this was such a simple rule that treat yourself like someone you're responsible for helping. But he dived deep into our ancestors, the religious text. He went on to those piece of literature that current our modern generation tends to ignore, जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि यार ये तो पुरानी बातें, इन्हें कौन सुनता है, मैं क्यों मानूं, मैं क्यों इन बातों में बिलीव करूं. This is something that I liked about him, that he actually took reference from those texts and established a relation of the modern sciences through them, जिनको आज के ज़माने में कोई वैल्यू दी ही नहीं जाती by most of the people. Right, that is, I'm quite fascinated by how he is one of the best psychologists in the world. He's the most cited psychologist in the world, one of the best psychologists in the world, and he is someone with such a prolific and such a thorough scientific background still believes in the value of these religious texts, as opposed to the current generation, which discards them without any consideration and treats them as dogmatic principles that people mindlessly follow. So yeah, I guess that was it for this episode. In this episode, we covered 2 out of the 12 rules of the book written by Dr. Jordan Peterson, and we learned a lot from these 2 rules itself, and we wish to continue the series in further videos. So yeah, this was quite a long-winded episode, and as I encourage you guys to read the book for yourselves, as we covered the crux of the books, I would say 60% of the books, but the way he
takes different timelines and takes different stories and different disciplines like psychology and religion, etc. And that the way he presents his point is quite interesting to read. So I encourage you to read it for yourself too. So yeah. And just one last thing that I'd like to say, that this was the take 2 of this episode. We recorded the whole episode and then realized that we messed up on one small thing, because of which we had to re-record this entire episode. So it would be really appreciated if you can just show us show us some love on this episode. So yeah, I guess we'll see you in the next video. Until then, goodbye.